हमने क्या पढ़ा था फोर्सेस के आउटकम्स क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना, स्पीड अप करना, स्लो डाउन करना, शेप चेंज कर लेना, डायरेक्शन चेंज कर देना। एक और जो आउटकम है फोर्स का, वो ये है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा देती है फोर्स. So that is why I think this topic of moments is an extension of the topic of forces. Okay, so a force can cause an object to rotate. Moments का जो topic है, it's based off this word, rotation. For example, if you have a door, let's say this is a door. Doesn't look that good. Let's try it like this. If you have a door and this is the point जहाँ पर वो rotate करता है जहाँ से, अगर आपने इसको like if you're opening it, so you probably have to pull it out. So it will rotate, right? बाहर को rotate करेगा door, Yes, ma'am. and it could rotate backwards like that as well. तो इस point पर ये point है जो rotate कर रहा है, right? This is the point. So you're applying a force on the door और उससे क्या हो रहा है? Door rotate कर रहा है. That is the concept of moments. मैम, Yes, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मोमेंट्स है या फिर जो डोर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, rotation moment है. Rotation. उसके अंदर हमारी फोर्स बिल्कुल भी ऐड नहीं है? Force की वजह से rotation हो रही है. ओके। Moment force का action है. Force की वजह से जो rotation हो रही है उसको moments कहते हैं. Moment कहते हैं. ठीक है? जैसे force की वजह से spring compress करता है. राइट, तो जो कंप्रेशन है वो फोर्स तो नहीं है खुद. स्प्रिंग फोर्स की वजह से कंप्रेस कर रहा है. उसी तरह फोर्स की वजह से जो रोटेशन हो रही है उस रोटेशन का नाम मोमेंट है. ओके, अब जिस पॉइंट पर रोटेशन होती है उसको हम पिवट कहते हैं. दिस इज योर पिवट, like that. Now let's draw a more formal diagram and I'll explain this concept again. This is what you might have seen in your textbooks. कि एक सीसॉ है और वो मिडल से रोटेट कर रही है. सो दिस इज योर पिवट. पिवट क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन. आई विल राइट दैट एज वेल. पिवट इज योर. मैम, ये हमेशा सेंटर होगा? नहीं, जरूरी नहीं है. जैसे कि डोर पे सेंटर नहीं है, कॉर्नर है. पिवट कहीं पे भी हो सकता है. ओके। पॉइंट ऑफ रोटेशन. अच्छा, अब आपकी जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये याद रखिएगा कि इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. फोर्स कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इसको आप इसी तरह याद कर सकते हैं. इफ यू हैव अ क्लॉक, राइट, इस डायरेक्शन में जो मूव करती है दैट इज क्लॉकवाइज. क्लॉक के डायरेक्शन में, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी दैट्स एंटी क्लॉकवाइज. ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव अ बॉक्स हियर, अगर आप यहाँ पे एक बॉक्स रखते हो और मैं लाइक आई एम नॉट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनीथिंग, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है? यस मैम, वेट.
That's right. Wait, excellent. This box has a force of weight acting downwards like that. Okay. अच्छा, अगर इस सीसॉ पर एक बॉक्स रखते हैं तो सीसॉ सीधा ही रहेगा या फिर थोड़ा रोटेट होगा किसी डायरेक्शन में? रोटेट होगा. That's right. The seesaw, you will see that it's something like this now. उसके वेट की वजह से सीसॉ इस साइड पे नीचे हो गया इस साइड से, राइट? तो क्या हुआ है कि इस फोर्स ने रोटेशन करवाई है on this point. So it's rotating like that. What do you guys think? Is it a clockwise rotation or anti-clockwise rotation? Anti-clockwise. That's right, this is anti-clockwise. So your force has caused rotation. That is the concept of moments, and we will formally write it here now. It's a product of let's write two definitions. It's firstly, it's rotation, or a better way will be turning effect. क्योंकि रोटेशन हम मेरे ख्याल में पूरे रोटेट होने को कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी टर्न हो तो that will be a better way to describe it. Turning effect. Turning effect of a force about a pivot. And one more way will be it's a product of force and the distance perpendicular to force from the pivot. Okay? And if we have to write the formula, product कहते हैं multiplication को, तो force का और distance का product है. And I'm writing this sign here for you to remember it's the perpendicular distance and not anything else. Here. So if you notice, force इस direction में और pivot से distance ये है. तो हमें कितना angle है? 90 degrees. It's perpendicular. Okay? ये point बहुत important है because it can easily get confused with another point. ये F into D is also the formula of work. Okay? We'll learn that more in the section of work, but I'll just write that quickly. So this is moment और work भी F into D है. लेकिन वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई बॉक्स है और आपने उस पर फोर्स लगाई है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉक्स डिस्टेंस कवर करेगा ना. So for work, Yes. force and distance are parallel. So I'll just write it here that this distance is parallel. लेकिन मैम, moments में ये perpendicular है. Yes. आप कोई कार की एग्जांपल दे सकती हैं? किसके example? कार ये एक्सीलरेशन उससे रिलेट है. Moments के related example? यस मैम. Okay. A good example will be uh what is it called? Driver, I guess. Let me search the name. Screwdriver, I guess. मैम, इसका फॉर्मूला थोड़ा मोमेंट से रेलेवेंट नहीं लग रहा.
मैम इसका ये मतलब है जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्टेंस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगा। नो नो नो, मोमेंट क्या है? रोटेशन, राइट? जब भी आप पिवट से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन हो। और ये फॉर्मूला क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमने ये बात अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि जब आपने मोमेंट का एक चीज से रिलेशन देखना है तो दूसरी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस से रिलेशन देखना है तो फोर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट? तो firstly let's discuss an example and then see the relationship between these two as well. ये जो मोमेंट है ये आपको बता रहा है कि पिवट से जितना डिस्टेंस होगा और फोर्स जितनी होगी उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। ओके, यस मैम। let's look at an example. Let's call it our magic tool for now. Magic tool. Okay, so let's say there is this one bolt, okay, and you're tightening it. तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? इस डायरेक्शन में, राइट? You will यस मैम। apply a force downwards like that. This is the direction of the मैम force. फिर इधर क्यों लगाएंगे? जी हाँ जी जी, सही है सही। Yeah, that's how it works. So you're tightening it, you applying force downwards. So rotation कहाँ पे हो रही है? इस bolt पे। ये tight हो रहा है, right? So distance, मैम इस केस में ये पिवट कहाँ पे होगी? pivot जहाँ पे rotation है। अब आप मुझे बताएं rotation कहाँ हो रही है? मैम मुझे सर्कल एरिया है। Yes, on the bolt जिसको आप tight कर रहे हैं, मैम वहां पे बोल्ट पे rotation हो रही नहीं, वहां से नहीं जहाँ से पकड़ रहे हैं, नहीं सॉरी बोल्ट ही हो। है। It's the bolt that's rotating जो आप जिसको like whatever you're closing or tightening. So this bolt is rotating. This is your pivot point. Okay, जहां पे भी rotation हो रही होगी, that's your pivot. अब इस pivot से distance force का और force, अब आप देखिए इनमें 90 degrees का angle है. So this is perpendicular. You're applying a force perpendicular to the pivot here. And that is why you're having a moment or rotation about the pivot. एक और example देख लेते हैं. The door example. Let's go back to it. मैम Yes? मैम ये बगैर कभी हम लोग मोमेंट्स मतलब एग्जांपल ले सकते हैं किसी की किसकी example? पीरियड के बगैर कोई एग्जांपल? Pivot नहीं, क्योंकि मोमेंट है ये रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे तो रोटेशन होगी, अगर रोटेशन ही नहीं है तो वो मोमेंट ही नहीं है। ओके, तो जिस पॉइंट पर रोटेशन होगी उसका नाम हमने पिवट रख दिया। पिवट इज नथिंग एल्स, इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ फैंसी नेम फॉर द पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर आपकी रोटेशन कहाँ पे हो रही है? डोर के hinges पर, राइट? The hinge of the door is rotating. So अब you can like see that yourself. Like maybe try it right now or whenever. So you will see कि आप जब door को pull करते हैं, so you're applying a force towards yourself, right? You're applying a force towards yourself. We can imagine the force coming out of the paper for our 2D diagrams because I'm not an artist and I cannot draw a 3D diagram. So you can imagine the force coming out of the paper, or you can do it while I'm explaining it to you. So when you pull the door towards yourself, it's coming towards you. And अगर जो door knob है वहां से आप इसका देखें, that is in this axis and the force is coming out. So the angle is 90 degrees. So whenever you have a force perpendicular to the pivot, you see rotation and that's how the door opens. Is that clear? यस मैम। मैम आप हिंज और डोर नॉब किसे कह रही हैं? Hinge ये है और door knob ये है. Hinge वो पॉइंट है जहाँ पे रोटेशन हो रही है जो दरवाजे के एंड में होता है, और door knob जिससे आप दरवाजा जहाँ पे फोर्स लगा के आप दरवाजा खोलते हैं. मैम वो तो पिवट नहीं था।
हिंज, हाँ जी, हिंज इज द पिवट। पिवट मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर बोल्ट पिवट था, उस तरह यहाँ पे हिंज पिवट है। सो जहां पे भी रोटेशन हो रही है उसको पिवट कह देंगे। अब क्योंकि दरवाजे के उस पार्ट का नाम हिंज है, सो दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग इट अ हिंज, लेकिन वहां पे रोटेशन हो रही है तो साइंटिफिक टर्म्स में दैट्स द पिवट ऑफ आवर केस। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब नाउ लेट्स सी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। पहला यूनिट्स देख लेते हैं और दूसरा वी विल लुक एट द रिलेशनशिप्स बिटवीन मोमेंट्स एंड फोर्स एंड मोमेंट एंड डिस्टेंस। सो फोर्स का क्या यूनिट है? Newtons. न्यूटन्स। और डिस्टेंस का? Husnain, I want you to tell me. Meters. That's right. So Newton multiplied by meter will be Newton meter. So the unit of moments is Newton meter. Okay. Now we're going to see the relationship of moment and force, and then moment and distance. Moment and force। और आप मुझे बताएं कि अगर मैं moment और force का relationship देखना चाह रही हूँ तो इनमें से क्या constant रखना पड़ेगा? Distance. Distance। और ये याद रखें कि मैं इसको कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए रख रही हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फोर्स इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। दैट इज नॉट अ कंडीशन हियर। इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि मोमेंट और फोर्स में क्या रिलेशनशिप है। ओके, यू कैन ट्राई दैट आउट योरसेल्व्स कि अगर आप पिवट से फोर्स, नो नो सॉरी, ओके, अगर आप थोड़ी फोर्स लगाते हैं दरवाजा खोलने के लिए तो दरवाजा थोड़ा सा खुलेगा, राइट? थोड़ी रोटेशन होगी। इज दैट राइट? Yes, ma'am. और अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा के उसके पिवट पे रोटेशन ज्यादा होगी और दरवाजा ज्यादा खुलेगा। इज दैट राइट? Yes, ma'am. ओके, सो दैट टेल्स अस दैट मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे आप उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। ओके, और डिस्टेंस का और मोमेंट का रिलेशनशिप ये तो आप खुद देख सकते हैं, राइट? लेकिन ये जो दूसरा है इसको भी यू कैन ट्राई, moment and distance, but it's going to be a little tricky to try. और इस केस में your force is constant. Constant का मतलब है you're not changing it. आप उतनी ही force apply कर रहे हैं. Now, you're going to try two things. You can even try that at home, up to you. Now, you guys might have noticed कि जो door है, its knob is very far from the pivot. जितना दूर हो सकता है उतना दूर उन्होंने बनाया होता है, right? उसकी क्या वजह है कि उन्होंने distance increase किया है। डिस्टेंस इंक्रीज करने से रोटेशन ज्यादा होती है। अगर आप उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप 5 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दरवाजे को खोलने के लिए, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स प्रैक्टिकल, आई एम जस्ट यूजिंग नंबर्स हियर। अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो आपके लिए आसान होगा जब डिस्टेंस पिवट से ज्यादा होगा। ओके, आप इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं? यू कैन टाई अ स्ट्रिंग, you can tape a string here and a string here. You're gonna have to use a stronger tape to the door. आपने कोशिश करनी है कि फोर्स सेम अप्लाई करें। जब आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच होगी तो आपको कम ज्यादा रोटेशन होगी सेम फोर्स पे। ओके, अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्ट्रिंग अटैच करके तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रोटेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम हुई है रोटेशन। ओके, इसलिए हमें क्या पता चलता है कि मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा, और ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। पिवट से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मोमेंट या रोटेशन उतनी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? No, ma'am. Can you repeat this? या श्योर।
So the point here is कि पिवट से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रोटेशन उतनी ज्यादा होगी. दैट्स द रीजन व्हाई द डोर नॉब या फिर डोर हैंडल हिंज से दरवाजे के दूसरे एंड से बिल्कुल दूर होता है. ओके, आप इसको मैं बता रही थी एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं कि आप आ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच कर लें और एक सेंटर में अटैच कर लें और आपने स्ट्रिंग को खींचना है सेम फोर्स से. आप नोटिस करेंगे कि जो एज पर थी स्ट्रिंग, उसको जब आपने खींचा है तो रोटेशन ज्यादा हुई है, और जब आपने सेंटर वाली स्ट्रिंग को खींचा है तो रोटेशन कम हुई है. और आप जितना करीब जाते जाएंगे पिवट से, यानी कि पिवट से डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपकी रोटेशन उतनी कम होती जाएगी. इज दैट क्लियर ना? Yes, ma'am. Okay. Another simple way to understand this will be math, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, राइट? अगर आपके पास ये m है और मैं f की एग्जांपल ले लेती हूँ एंड d की एग्जांपल ले लेती हूँ. So if your force is 2 and your distance is let's say 1, तो मोमेंट है 2. अगर मैं फोर्स इंक्रीज कर देती हूँ एंड इट्स 4 और डिस्टेंस सेम रखती हूँ तो मोमेंट ज्यादा हो गया 4. 4 1 times 4. सो यू सी फोर्स ज्यादा करने से प्रोडक्ट बड़ा हो गया, मोमेंट, राइट? और अगर मैं सेम फोर्स लेती हूँ 2 और डिस्टेंस इंक्रीज कर देती हूँ अब 4, तो 8 न्यूटन मीटर्स मोमेंट हो गया. सो इट्स जस्ट मैथ कि दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें से एक भी इंक्रीज होगा या दोनों इंक्रीज होंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा. मेक सेंस? Yes, मैम. मैम, ये वाले और दूसरे फॉर्मूला में क्या आपने डिफरेंस बताया था? दूसरा कौन सा फॉर्मूला? वर्क डन का. ओ, वर्क डन का. वर्क डन का ये है कि जब आप एक बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉक्स उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है. तो उस फोर्स की वजह से उस बॉक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज योर वर्क डन. सो इस एग्जांपल में फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल है और मोमेंट में फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर.